Hello everyone, good afternoon. I hope I am audible and visible perfectly. Am I? Confirmation to apo allow. All right, fine. So let us begin with organ, vegetative organ of plant number 2, that is a stem. Till last lecture we have finished up to roots. Two types of root system basically. Taproot system, fibrous root system. Applied બેયમાં હોય, right? That is adventitious, right? So there are three. Third is subcategory of root system. So there are three types of root system. Number 1 taproot system, number 2 fibrous root system, and number 3 adventitious root system. We have seen the common functions of the root. We also have observed region of the roots, and we have gone through varieties of modified or special functions of the roots as well. આટલું આપણે we have already covered in the root. Now today we are going to discuss about the stem. So modification of stem is for the function of transportation. Also called conduction. So it has been originated for this reason. इसका जो origin है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ, I mean starting from pteridophyte, from where the stem was the first time originated. So it has been evolved with respect to presence of xylem and phloem for the first time. So xylem and phloem are specific feature which is associated with the structure of stem, which is a conductive tissue. So this region is associated with conduction of two types of material, right? Conduction of what? Or transport of what? Transport of inorganic substances and transport of organic substances. ओके, टिल टुडे आज तक हमारे दिमाग में एक कैसेट फिट है, दैट इज xylem is modified for transportation of water plus minerals, and phloem is modified or it is associated with conduction or transport of food material. I am very right, you are very right with that point of view. But technically अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारी या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दो टाइप के मटेरियल को हमें ट्रांसलोकेट करना पड़ता है. दो टाइप के मटेरियल को, आई मीन एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी ट्रांसलोकेशन एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन भी, दोनों का ट्रांसलोकेशन का मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर, WATER, वाटर ही होता है, राइट? अब मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जाइलम टिश्यू, एंड ऑर्गेनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लोएम टिश्यू. Right? So xylem, inorganic substance plus water, phloem, organic substance plus water. So you are not supposed to think that water is transported only through xylem. No, water is also medium of transportation in xylem and phloem both. दोनों में वाटर ही मीडियम होगा ट्रांसपोर्टेशन का. एक में इनऑर्गेनिक है, एक में ऑर्गेनिक है. दैट इज द डिफरेंस व्हाट वी आर सपोज टू नो फ्रॉम
टुडे एंड नाउ ऑनवर्ड्स, आज की डेट से हमें ये इस हिसाब से याद रखना है हमें जाइलम एंड फ्लोएम को। पुराना डेटा रिप्लेस करते हैं हम आज से। सो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, एंड फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। दिस इज द वे वी आर सपोज टू रिमेंबर इन these conduction or this kind of transportation mechanism through stem or any other conducting tissue. I hope I am very clear with this. Please give the confirmation. Thumbs up. All right, good. May I erase or you are writing? Okay. Fine. The stem. स्टेम के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है। वी नो व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ स्टेम। हाँ, ओरिजिन ऑफ स्टेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रिमेंबर्ड। जैसे हमने रूट में बात की थी कि इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, सेम वे द शूट सिस्टम स्टेम is originated from plumule part of the embryo, right? Embryo, if you remember the structure, say for example, if this is a seed, say for example, then if this is an embryo, तो आगे का ये जो पार्ट है एम्ब्रियो का, the apical part which is at the top, that is called plumule, right? तो प्लूमुल में से उसका ओरिजिन है। रेडिकल यानी कि ये लास्ट पोर्शन है पूछड़ी वाला, राइट, दैट इज रेडिकल। तो रेडिकल में से बनेगा आपकी रूट सिस्टम का पार्ट, और इसमें से आपका बनेगा शूट सिस्टम पार्ट। तो इसमें सबसे पहले बनेगा जो शूट सिस्टम का पार्ट, दैट विल बी स्टेम। अब उसमें भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो याद रखना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि हम अभी रूट के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। शूट सिस्टम जब सबसे पहले बनता है, राइट, तो जो स्टेम बनेगा, सबसे पहला जो स्टेम बनेगा, दैट विल बी सॉफ्ट, दैट विल बी सॉफ्ट, टेंडर होगा, सॉफ्ट एंड टेंडर होगा, राइट, जिसको हम बोलेंगे नॉट ड्राई और वुडी। वुडी या ड्राई नहीं है वो, अंडरस्टूड, एम आई करेक्ट? तो वो होगा सॉफ्ट एंड टेंडर, फ्लेक्सिबल होगा। तो उसके लिए जो बुक में वर्ड दिया गया है वो है ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम बोलेंगे हम उसको। तो जो अगर सीड है, सीड का जर्मिनेशन हुआ है एंड जो मेन एक्सिस उगेगी वो कैसी होगी? सॉफ्ट, या तो ग्रीन स्टेम बोला जाएगा उसको। तब उसके जो भी एपिकल बड है वो कंटिन्यू ग्रो करेंगे, एपिकल बड, और साइड के लेटरल बड्स में से लीव्स सबसे पहले निकलेंगे, राइट। तो स्टेम जो है उसके लेटरल बड्स में से लीव्स बनेंगे। ये इनिशियल स्टोरी है, राइट। कुछ समय के बाद वो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। प्लांट जब बड़ा हो जाएगा, उसकी जो मेन एक्सिस है, जो स्टेम है, उसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? तब क्या होगा पता है? तब ये लेटरल बड है ना, यही स्टेम है, ये सॉफ्ट स्टेम था। अब ये स्टेम हो जाएगा थोड़ा सा हार्ड, और जिसको मैं बोलूंगा वुडी, राइट। ये हो जाएगा अभी वुडी स्टेम। तो ये वुडी स्टेम जो होगा, तब उसके लेटरल बड मॉडिफाइड होके ब्रांचेस बनाएंगे।
तब उसमें से ब्रांचेस डेवलप होगी। सो ये पूरी सिस्टम बनेगी बड़ी सी, जिसको हम स्टेम में से ही निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे एट द एंड शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम का बेस है सबसे पहला जो मेन एक्सिस स्टेम, उसके ऊपर होंगी ब्रांचेस, ट्विग्स, उसके ऊपर होंगे काफी सारे लीव्स। बर्ड्स, दो टाइप के बर्ड्स होंगे, एपिकल बर्ड्स भी होंगे, लेटरल बर्ड्स भी होंगे, राइट। इसके सिवा जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है, फ्लावर्स अगर है तो, फ्रूट्स अगर है तो, राइट, सभी मिलके क्या बनाएंगे, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं, मैं उसका लिस्ट यहां पे आपके सामने रख रहा हूं। पहला है स्टेम, राइट। स्टेम के पास दो है बर्ड्स, एक है एपिकल बर्ड्स, एक है लेटरल बर्ड्स। दूसरा दैट इज ब्रांचेस। तीसरा नोड्स एंड इंटरनोड्स। फोर्थ लीव्स। फिफ्थ फ्लावर्स। सिक्स्थ फ्रूट्स, etc. These are the main component cumulatively known as shoot system. सभी को एक साथ हम शूट सिस्टम बोलते हैं, बट उसका बेस एक ही है। जो मेन जो उसका कंटेंट है वो क्या है, स्टेम, क्योंकि स्टेम ही सबको पकड़ के जोड़ के होल्ड करके रखता है। दैट्स व्हाट द रोल ऑफ स्टेम, एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग राइट नाउ अबाउट द स्टेम फर्स्ट। ऑलराइट, एनी डाउट इनटू दिस? किसी को डाउट है इसमें? जितना भी मैंने 2-4-5 लाइंस आपको समझाई उसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज द हैंड्स। ऑलराइट देन, सो इट इज एसेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। जब जर्मिनेशन होगा सीड का तो ऊपर की तरफ उगने वाला पार्ट है। एसेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस डेवलप्स फ्रॉम प्ल्यूमूल ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर जर्मिनेटिंग ऑफ द सीड, bears branches, leaves, flower, fruits, buds, nodes and internodes, जिसका लिस्ट मैंने अभी आपको समझाया। तो ये सभी पार्ट्स है आपके मेन एक्सिस यानी कि स्टेम के ऊपर। ओके, बात यहां पे रखी है आपके सामने नोड्स की। NODE, नोड हम किसको बोलेंगे, राइट? नोड किसको बोलते हैं? से फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के ऊपर ये जो मेन एक्सिस है ये है स्टेम, राइट? ये है स्टेम। स्टेम की ये पहली ये पार्ट कि जहां से आपने देखी पहली फर्स्ट ब्रांच, ब्रांचिंग जहां से स्टार्ट हुई वहां पे, तो ये पार्ट को मैं बोलूंगा NODE, नोड। ये है नोड अपनी। बाद में दूसरी ब्रांच यहां पे लगी है, दिस इज द सेकंड ब्रांच, तो ये हो गई अपनी सेकंड नोड। ये है सेकंड नोड, राइट? तो ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। तो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ वो ऐड ऑन होती जाएगी। ऊपर की तरफ नोड्स जो है वो नई नई ऐड ऑन होती जाती है। कैसे होती है, राइट? कैसे होती है, लेट मी क्लेरिफाई इट टू यू। से फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस है जिसको बोलेंगे हम सॉइल का। ये एपिकल बड है, दिस इज एपिकल बड, राइट? ये जब आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, से फॉर एग्जाम्पल ऐसे,
तो एपिकल बड जो है वो तो आगे रहता ही है कंपल्सरी, बट वहां से वो जब आगे बढ़ता है तो खुद के सेल्स को यहां पे छोड़ देता है, थोड़े से सेल्स रख के जाता है आगे, राइट। ये जो सेल्स होंगे यहां पे, ये सेल्स एपिकल बड के जो सेल्स है, टाइप ऑफ टिश्यू, वो है मेरिस्टेम सेल, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, राइट। कौन से सेल है? मेरिस्टेम सेल है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। चलिए, किसको पता है मेरिस्टेम के बारे में? हैंड रेज करिएगा प्लीज, मेरिस्टेम के बारे में अगर किसी को पता है। मेरिस्टेम, ओके, जामनगर सेंटर। सर जिसमें सेल डिवीजन हो सकता है। ओके, ऐसे सेल्स जिसका सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली हो सकता है, राइट। सुरेंद्र नगर सेंटर। सर दो सेल which are undifferentiated। ओके, पोरबंदर सेंटर। सर वो सिर्फ ग्रोथ पे ही मतलब काम करेंगे, वो सेल डिवीजन करेंगे उसका, वो अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएट यस, नहीं होता। यस। सो रूट के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, रीजन ऑफ रूट, उसमें भी जो एपिकल रीजन था, मींस लास्ट की टिप का रीजन था, वो जो बड था ना, उसको भी एपिकल बड ही बोलेंगे। सेम टू सेम ये जो टिप है, ये भी एपिकल टिप है और इसमें सेम टिश्यू रहती है, तो वो भी एपिकल बड ऑफ रूट था और ये भी एपिकल बड ऑफ शूट है। दोनों एपिकल बड ही है, दोनों का सेम ही पार्ट है, दोनों का सेम ही काम है, दोनों में सेम ही टिश्यू है, और वो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उसका काम एक ही है, जैसा हमने रूट सिस्टम में पढ़ा था, दैट इज डिवीजन। उसका काम सेल डिवीजन है। तो उसके नीचे का रीजियन क्या होगा? रीजियन ऑफ इलोंगेशन, रीजियन ऑफ इलोंगेशन होगा। उसके नीचे का रीजियन ये क्या बन जाएगा? रीजियन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बन जाएगा? रीजियन ऑफ मैच्योरेशन। सो सिमिलर आइडियोलॉजी, सिमिलर वर्किंग पैटर्न है यहां पे। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। रेडी? ओके। सो सेम वे यहां पे मेरिस्टेम सेल है, तो मेरिस्टेम सेल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो यहां पे थोड़े से मेरिस्टेम सेल को रख के जाएंगे आगे। तो ये जो बन गई ना, ये हो गया अपना अभी लेटरल बड। तो लेटरल बड था नहीं पहले, बना है। किस में से बना है? इसी ने तो बनाया है, एपिकल बड में से ही लेटरल बड बना है। क्यों बना है पता है? लेटर ऑन यहां पे क्या करना है? लीव्स को ग्रो करना है। तो लीव्स को ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? मेरिस्टेम, वरना वो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए वो थोड़े थोड़े सेल्स को रख के आगे डेवलप होता जाता है कंटिन्यूअसली। तो पहला लीव यहां पे से फॉर एग्जांपल आया, दूसरा लीव यहां पे आएगा, तीसरा लीव यहां पे। तो एज दे ग्रो अपवर्ड, they will keep on adding either leaves or branches on the axis. So this is how it grows. ये उसकी ग्रोथ की पैटर्न है, राइट। तो ये जो है, जहां से लीव्स या तो ब्रांचेस उगने वाली है, वो पार्ट को बोलते हैं हम क्या? नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड। दो नोड के बीच का जो रीजन है, ये रीजन, दो नोड के बीच का जो रीजन है, उसको बोलेंगे हम इंटरनोड रीजन। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। सो नोड आर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। यंग स्टेम, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, यंग स्टेम जनरली इज ग्रीन, नॉट इन कलर, प्लीज माइंड इट वेरी वेल। ये ग्रीन का मतलब कलर में ग्रीन नहीं है, सॉफ्ट है, ऐसा ग्रीन है, राइट। तो इट इज जनरली ग्रीन एंड लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन, जिसके बारे में मैंने इसके पहले की स्लाइड में
आपके आपके सामने पूरा ही मैटर जो है उसको डिस्कशन में रखा था। ऑलराइट, अब बात आती है उसके कॉमन फंक्शंस की। राइट, इट इज कॉमन फंक्शन। मैं आगे एक हाईलाइटिंग वर्ड रख रहा हूं, कॉमन फंक्शन, ऐसा करके। कॉमन फंक्शन का मतलब क्या होता है पता है? कॉमन फंक्शन का मतलब क्या होगा? जो सभी स्टेम करेंगे, सभी स्टेम को वो करना ही है, उसको बोलेंगे कॉमन फंक्शन। राइट, तो फंक्शन ऐसे जो कोई भी प्लांट के स्टेम को करना पड़ेगा, तो इट इज कॉल्ड कॉमन फंक्शन। सो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉमन फंक्शन इज व्हाट? स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस, बेरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो वो सभी प्लांट के सभी स्टेम को करना ही है। राइट, सेकंड, उसका ओरिजिन जिसके लिए हुआ, कंडक्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड photosynthetes. Very unique word they have used here. photosynthetes. photosynthete का मतलब होता है the material which is getting synthesized by the process of photosynthesis. उसको हम बोलेंगे photosynthetes. Do remember this word which is uniquely presented in front of you. photosynthete. कल ही मैं बात कर रहा था, आई थिंक सो, एक स्टूडेंट के साथ कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म, आई थिंक सो हमारे में से ही कोई एक सेंटर में से वो डाउट टीचर ने मुझे कॉल करके बोला, एक्सप्लेन मैं कर रहा था एक्चुअली स्टूडेंट के सामने, आपके सामने रख रहा हूँ, इट इज़ वेरी यूजफुल, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग टू यू। से फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सो एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, चलिए do remember photosynthesis produces only glucose, right? Only glucose is getting produced as a product of photosynthesis. But आप बोलते हो क्या फोटोसिंथेसिस किसके लिए है? फूड प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए है? फूड प्रोडक्शन। राइट, इट इज अ फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन वर्ड 10th तक आप अगर बोलते हो तो टेक्निकली सही है, you can say it like a food production, right? अब 11th 12th specifically when you are targeting or aiming about the need, तो यहां पे वर्ड को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, it is called biomass. I repeat the word biomass. It is called production of biomass. मतलब जिससे आपका बॉडी बना है, बायो बॉडी मीन्स ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायो बोलते हैं। मास मतलब जिससे आप बने हो, मास नहीं, मटन नहीं, MASS मास, फिजिक्स वाला मास, जिससे आपकी बॉडी का पूरा कंपोनेंट्स बना है, MASS मास, बायोमास है ये। राइट, तो बायोमास में कौन कौन इंक्लूडेड है भैया? कौन कौन इंक्लूडेड है? किसको मैं इंक्लूड करूंगा बायोमास में? तो सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मुझे ऐड करना पड़ेगा बायोमास में। ये बायोमास है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारा बायोमास बनता है। वी आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। राइट, सो नंबर 1 है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 है लिपिड्स, नंबर 3 है प्रोटीन्स एंड नंबर 4 है न्यूक्लिक एसिड। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही है। राइट, मैं डायरेक्टली समझाता हूं, पूछने में टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूं बिकॉज वी आर शॉर्टिंग विद द टाइम। देन तो ग्लूकोज का डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज डायरेक्टली पॉलीमर बनाएगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। राइट, बट अगर लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड बनवाना है, उसका सिंथेसिस करना है, तो बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल एक ही है, ग्लूकोज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज
एक ही आइटम को प्रोड्यूस करता है, दूसरा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मुझे ग्लूकोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई, आई नीड टू मॉडिफाई ग्लूकोज इनटू आइदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दो में से एक बनाऊंगा। एंड उसमें से क्या बनने वाला है? लिपिड। लिपिड तो पॉलीमर है ही नहीं, तो डायरेक्टली वो तो ट्राइग्लिसराइड ही बनेगा। रेडी? समझ में आ रही है मैटर? समझ में आ रही है मैटर? तो मॉडिफाई कौन होगा? ग्लूकोज। देखिए, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज में फैटी एसिड बनेगा, जिसमें से लिपिड बनेगा। सो अल्टीमेटली लिपिड अगर बनाना है तो क्या आपको चाहिए हो गया? फोटोसिंथेसिस, प्लांट को, राइट? तो वो भी प्रोडक्ट किसकी बन जाएगी? इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस की ही प्रोडक्ट है। ओके, सेम ग्लूकोज में से ही मॉडिफाई होगा और बनेगा अमाइनो एसिड, और उसमें से पॉलीमराइजेशन होगा, बनेगा प्रोटीन। वही ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन होगा, बनेगा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस बनाएगा, नाइट्रोजन बेस बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होके बनेगा न्यूक्लिक एसिड। सो अल्टीमेटली ये चारों को बनाना है, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म जो होगा वो फोटोसिंथेसिस। एक जादू की पुड़िया में खोल रहा हूं आपके सामने, मैजिक बॉक्स, राइट? जो आपके लिए एक्सट्रीमली न्यू है, आपने कभी इसके बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा, और मे बी वेरी सरप्राइजिंग लगेगा जब मैं आपको बोलूंगा कि जब ये मॉडिफिकेशन की बात आएगी, पॉइंट टू बी नोटेड, मॉडिफिकेशन का पाथवे फोटोसिंथेसिस नहीं है। मेटाबॉलिक पाथवे कि जिस पाथवे में ये मॉडिफिकेशन होता है, वो पाथवे फोटोसिंथेसिस का पाथवे नहीं है। कभी कभी घर में कुछ चीज पड़ी हो और हमें चाहिए, राइट? तो वो हम डायरेक्टली मांग सकते हैं कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, या तो पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो मम्मी दे देगी कि चलो ये ले ले फटाफट। बट कभी कभी चीज ऐसी होती है जो घर में नहीं होती है, बाहर से खरीदनी पड़ती है, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि पापा को बोलेगा कौन कि ये 1000 रुपये का आएगा और ये मुझे चाहिए, बुक, सही फॉर एग्जाम्पल। तो तब हम सहारा लेते हैं, पता चल गया है ना सब। पहले बटर पॉलिशिंग होगी मम्मी की, कि मम्मी अभी जो चैप्टर चल रहा है ना बहुत ही हार्ड है, हमारे क्लास के जितने भी वो होशियार होशियार छोकरे छोकरियों है ना, उसको भी नहीं आवड़ता है, इतना हार्ड है ना। फिर मैं सर के पास गया था या गई थी, सर ने मुझे समझाया, लेकिन मुझे थोड़ा हार्ड तो पड़ गया। बाद में मैंने सर को पूछा कि सर कोई रेफरेंस बुक ऐसी होगी जिसमें, तो उसने बोला कि ये रेफरेंस बुक ले लो। तो मम्मी बोलेगी ये इतनी इंपॉर्टेंट है? हाँ सर ने बोला है। हाँ बोला है। ओके, एक काम करता हूँ, एक काम करती हूँ, आज पापा आएंगे ना, उसको अपना काम हो गया यस करके, अपना काम यस, तो थ्रू समबडी एल्स हम कहलवाते हैं, अपना मैसेज जो है पास ऑन करते हैं। आई एम वेरी करेक्ट। काफी सारी चीजें ऐसे हमने ली है ना, काफी सारी चीजों का प्रोडक्शन हमने ऐसे किया है। तो सेम वे ये फोटोसिंथेसिस का पाथवे जो होगा ना, ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें एक दूसरा पाथवे यूज करना पड़ता है, और वो पाथवे है रेस्पिरेशन का पाथवे। कौन सा पाथवे है? रेस्पिरेशन का पाथवे। याद रखना है, लिखा कहीं पे शायद हो न हो, पता नहीं है। रेस्पिरेशन का पाथवे यूज होता है यहाँ, ये याद रखना है आपको। रेस्पिरेशन का पाथवे कौन फॉलो करता है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए
थोड़ा सा हेल्प करने वाला है इस काम के लिए, राइट। तो प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी पाथवे ये मॉडिफिकेशन के काम में उसका हेल्प करेगी। डू रिमेंबर दिस। कौन से ऐसे सेंटर हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी खत्म हो चुका है? ओके, रेस्पिरेशन भी खत्म हो चुका है, ऐसा कोई है? ओके, रेस्पिरेशन का लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर पता है, एम्फिबोलिक पाथवे। बस एम्फिबोलिक पाथवे के बारे में बात कर रहा हूं, ये है मॉडिफिकेशन का पाथवे। एम्फिबोलिक पाथवे इज द पाथवे फ्रॉम वेयर इट इज गेटिंग मॉडिफाइड। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से वो लिपिड बना सकता है या तो प्रोटीन बना सकता है, राइट। अब जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि कैसे होगा वो। आस्क टू योर टीचर के समझाइए कि ये कैसे होगा, राइट। ऑल राइट, चलिए। ओके, थर्ड कॉमन फंक्शन, सम स्टेम हेल्प इन फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये है मॉडिफाइड फंक्शन, कॉमन नहीं है ये क्या है? मॉडिफाइड फंक्शन। तो मॉडिफाइड फंक्शन का तो पूरा लिस्ट है मेरे पास, मस्ती का, ये रहा, ये पूरा लिस्ट है अपने पास मॉडिफाइड फंक्शन का। फूड स्टोरेज, स्टेम टेंड्रिल्स, हॉर्न, बहुत ही मस्त, फाइलेक्लाइड, स्टोलन, ऑफसेट, सकर एंड रनर, जो यहाँ पे है ही नहीं। ऐसे अलग अलग 8 फंक्शन है, यहाँ पे 7 दिए हैं, मेरी पास स्लाइड में 8 है जो आपको पढ़ने हैं। तो लेट वी बिगिन विथ फूड स्टोरिंग। फर्स्ट modification of stem is for the process of food store. Okay, stem is not meant for storing food. कभी भी उसका काम फूड स्टोरेज का नहीं है, बट काफी सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्टेम है। मींस यस वलसाड सेंटर बेटा। सर वो लास्ट स्लाइड जो थी, जो ए टाइप्स में लिखना था। ये हाँ, ओके, लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। हो जाए तो जरा थम्स अप कर दीजिएगा तो। ऑल राइट, फाइन। ऑल राइट, आई होप वी हैव फिनिश्ड राइटिंग पोर्शन। अगर रह गया से फॉर एग्जाम्पल, तो 1 by 1 हर एक स्लाइड के ऊपर ये फिर से रिपीट होने वाला है, तो यू कैन रिकन्फर्म द सीक्वेंस, नो इश्यू। ऑल राइट, सो फर्स्ट वन ये रहा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पहला, फर्स्ट, फॉर द फूड स्टोरेज, ये फर्स्ट अपना मॉडिफाइड फंक्शन है। एज आई सेड कि स्टेम का ये मेन पार्ट नहीं है, तो काफी कम ऐसे प्लांट है जिसके अंदर फूड स्टोरेज स्टेम में होता है। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ जो आपके सामने शेयर किए गए हैं, नंबर 1 ये सबको अच्छे लगते हैं, पोटैटोज। नंबर 2 काफी कम लोगों को अच्छा लगता है, आदू, जिंजर, एंड बहुत ही कम लोगों को अच्छा लगता है टर्मरिक, है ना, हळदर। सो ये 3 ऐसी चीज है जहां पे आपको, 3 ऐसे प्लांट है जहां पे आपको स्टेम जो है वो मॉडिफाइड मिलेगा फूड स्टोरेज के, प्लस 2 मोर जो बड़े हैं साइज में, ये छोटे छोटे हैं साइज में, इन शॉर्ट ये बड़े हैं। इसको मैं बोलूंगा कॉर्म, राइट, दोनों को। ये जमीन कंद है और ये कोलोकेसिया है। तो ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जमीन कंद, राइट, कि जहां पे ये स्टेम जो है फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई, सुरण जिसको बोल, जमीन कंद मतलब सुरण, सुरण तो सबको पता होगा शायद, है ना। ऑल राइट, सो फूड स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद एंड कोलोकेसिया आर स्टोरिंग द फूड। ओके, एक चीज आपको ऑलवेज रिमेंबर रखनी है इस मॉडिफिकेशन के लिए कि जब वो फूड स्टोरिंग होगा, मुझे ब्लैक करना पड़ेगा इसको। ओके, जब वो फूड स्टोरिंग होगा ना, तो फूड स्टोरिंग ऑलवेज अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड होता है।
क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो कोई खा जाएगा, हर्बीवोरा जो भी होगा वो, गाय भैंस आके चर जाएगी बेचारे को, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो अंडरग्राउंड। तो ये अगेंस्ट द नेचर है, राइट। स्टेम का नेचर क्या है, वो अबोव द ग्राउंड उगता है, बट अगर वो फूड स्टोरिंग हुआ तो वो बिलो ग्राउंड और अंडरग्राउंड उगेगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन में स्पेशलिटी उसने एडप्ट करी है। जब वो फूड स्टोरेज करेगा तो वो अंडरग्राउंड उगने वाला है। प्लीज डू रिमेंबर दिस, राइट। एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरेनिएशन टू टाइड ओवर कंडीशन विच इज अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। अब पेरेनिएशन का मतलब क्या होता है वो आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूं, राइट। पेरेनिएशन का मतलब वो सीजनल प्लांट है। कैसे है, सीजनल प्लांट है, उसका सीजन होता है ग्रो करने का, उसका सीजन होता है फ्लावरिंग का। पोरबंदर सेंटर, व्हाई आर यू टॉकिंग मच? मोनार्क सूरत, यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? पर क्या है, इसको आ रहा है आपकी स्क्रीन जो है ना ऐसे दिख रही है, लाइट दिख रही है उजाले की वजह से, तो उसका वो या हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ से, इसीलिए अच्छा, इससे बोल ओके ओके ओके, नो इशू बेटा, नो इशू। Sir, यस बेटा, मोनार्क वाले प्लीज। Dominican means सॉरी, Dominican was जमीन का सुरण, सुरण सुरण, रताड़ू बोलते हैं ना जिसको, रताड़ू या सुरण, दैट इज जमीन कंद। कहाँ पे था मैं, वेयर आई वाज टू बी, भूल गया, राहुल गांधी जैसा हो गया। पेरेनिएशन, यस, दैट वाज द वर्ड आई वाज डिस्क्राइबिंग। पेरेनिएशन, मैं बोल रहा था सीजन्स के बारे में। तो उसकी फ्लावरिंग की भी सीजन होती है, उसके ग्रोथ की एक सीजन होती है। जब वो ग्रोथ की सीजन होती है, फ्लावरिंग की सीजन होती है, तब वो भरपूर फोटोसिंथेसिस करते हैं, भरपूर बायोमास बनाते हैं, और जितना वो फूड प्रोडक्शन करते हैं सब एक साथ स्टोर करके रख देते हैं। कहाँ पे, स्टेम में। तो ये मैकेनिज्म को हम बोलेंगे पेरेनिएशन। एनम, पर एनम, पर मतलब वंस, एनम साल में एक बार, पेरेनिएशन का मतलब साल में एक बार जो सीजन होती है तब वो जो काम करते हैं उसको पेरेनिएशन बोलते हैं। डू रिमेंबर दिस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ये एकदम टेक्निकल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, पेरेनिएशन। ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट ज्यादातर मोनोकोट पेरेनियल है, एक ही बार सीजन आती है साल में, एक ही बार, पेरेनियल प्लांट है वो, राइट। सर, यस सर, ये जो जिंजर होता है यस, वो 12 मंथ्स में, सब मंथ में आता है, जिंजर होता है वो हाँ हाँ, वो पूरे साल आता है, आलू के साथ, पूरे साल आता है। हाँ तो जिंजर, भले न आए वो सर आपका वो पेरेनियल होता है। वो पूरा अलग मैटर है। वो अलग मैटर क्यों है पता है? बिकॉज दे कैन ग्रो वेजिटेटिवली, दे कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, वो मैकेनिज्म पूरा अलग है, राइट। बट वो ग्रोथ जब करेगा ना तो वो पेरेनियल ही है, राइट। उसकी जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसका फ्लावरिंग का सीजन है, वो पेरेनियल ही है। डू रिमेंबर दिस। उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, स्टेम, उसके अंदर बडिंग होती है, और वो बडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली अंडरग्राउंड ही फैलती रहती है, तो वो कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दैट इज द चेंज। ऑल राइट, दूसरा किसी, हाँ दूसरे किसी का हैंड रेज था। हाँ सर, तो लास्ट स्लाइड में आपने बताया था ना कोलोकेशिया, हाँ, वो उसका मतलब क्या होता है? कौन सा सेंटर है? तरसाली। अच्छा, तरसाली बरोड़ा। ऑल राइट, ये, हाँ बोला सर। यस, ये और ये दोनों कजिन है, नथिंग एल्स।
ये एक ही स्पीसीज के दो सब स्पीसीज है। एक को मैं सुरण बोलता हूं तो दूसरा सुरण का चचेरा भाई है, तो दोनों का कॉर्म ही है। देखिए ये भी कॉर्म है, ये भी कॉर्म है, राइट। तो इसका नाम एक है जमीनकंद और इसका नाम है दूसरा कोलोकेशिया, बाकी दोनों एक ही है। मींस दो सब, जैसे एक से फॉर एग्जांपल जेब्रा है और एक है हॉर्स, दोनों अपने फेस फीचर से तो सेम ही है ना, सिर्फ कलर का ही फर्क है। अंडरस्टूड? सो दोनों सब स्पीसीज है। एक डॉग है, एक वुल्फ है, दोनों दिखते तो सेम ही है, दोनों सब स्पीसीज है। वैसे ये दो सब स्पीसीज है, राइट। ये दोनों सब स्पीसीज है, दूसरा कोई चेंज नहीं है उनमें। ऑलराइट, मैं कहां पे था? टेंड्रिल्स, यस। सेकंड, मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ स्टेम। काफी सारे स्टेम्स ऐसे होते हैं जो स्टेम लेंथ में ग्रो करते हैं, विड्थ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। दे यूज्ड टू बी वेरी थिन, थ्रेड लाइक। तो ऐसे प्लांट्स या तो क्रीपर रह जाएंगे या तो क्लाइंबर बनेंगे। पता है ना, क्लाइंबर एंड क्रीपर आपको 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है ना। तो जो क्लाइंबर होंगे वो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट को यूज करेंगे, क्लाइंबिंग मॉडिफिकेशन को यूज करेंगे। तो अगर वो मॉडिफिकेशन स्टेम में से उगता है, आई रिपीट, स्टेम मॉडिफाई होके क्लाइंबर को सपोर्ट करता है, तो ये उसका मॉडिफिकेशन ऑर्गन है, टेंड्रिल। स्टेम, उसके पास नोड है, नोड में से स्प्रिंग जैसा एपरेटस बनता है, स्प्रिंग कोइल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जो सपोर्ट के इर्द गिर्द, उसके सामने, उसके अराउंड पूरा रेप अराउंड हो जाएगा और उसको होल्ड करके रखता है। तो दैट इज द स्टेप। स्टेम विल बी एडेप्टिंग एट दैट मोमेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो क्या होगा? सपोर्ट दे देगा। अब वो आगे की जो एपिकल बड है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी, अगेन वो नया टेंड्रिल बनाएगा, अगेन थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, अगेन नई टेंड्रिल बनाएगा, जहां जहां उसको सपोर्ट मिलेगा टेंड्रिल बनाता जाएगा। तो वो सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किसमें? अप, उसको जितना भी अप लेवल में ग्रोथ करना है, अप हिल ग्रोथ करना है, उसमें वो हेल्प करता है। सो स्लेंडर और स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर, स्लेंडर मतलब पतला सा, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग जैसा, स्ट्रक्चर विच इज डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, बर्ड्स में से वो डेवलप होंगे। दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब अपवर्ड। से फॉर एग्जाम्पल गोड्स, जितने भी गोड्स है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, गोड्स का मतलब क्या होगा? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, वेला गोड्स मतलब, राइट। एंड ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स, द्राक्ष, उसका भी वेला ही होता है, ग्रेप द्राक्ष का भी, राइट। थॉर्न, कांटा, राइट। तो अगर स्टेम मॉडिफाई होता है प्रोटेक्शन के पर्पस से स्पेशली, ताकि कोई अगर हर्बीवोरस एनिमल आता है, खाने की ट्राई करता है, कांटा लगता है, दौड़ के वापस चला जाएगा। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए उसका मॉडिफिकेशन अगर हुआ तो वो होगा थॉर्न। सो वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, अगेन एक्सिलरी बड में से ही वो मॉडिफाई हुआ है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स लाइक सिट्रस, लींबू, बोगनवेल, ये बोगनवेल है और ये लेमन, सिट्रस है, राइट। सो ये दो प्लांट ऐसे हैं जिसमें कॉमनली आपके अराउंड में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ये थॉर्न देखने को मिलेंगे। कांटे के बारे में ज़्यादा समझाना आई थिंक सो आप सबका अपमान ही गिना जाएगा। बचपन में काफ़ी सारे कांटे खाए हैं हमने,
So it is not new for us, right? All right. Now comes very unique feature. Phylloclad, very unique feature. अब इसके बारे में अगर मुझे पढ़ना है या तो आपको पढ़ाना है तो मुझे थोड़ा सा डीप जाना है, थोड़ा सा डीप, बहुत ज्यादा नहीं. Let me go again and compare the photosynthesis. Where you have two modification, C3 or C4 pathway. Right? Okay. Now I am into desert plants. There are many desert plants, which have a specialized structure and function. Right? Very unique features what they have. So desert plant usually with respect to photosynthesis, उसमें जो modification होता है वो पहला modification जो आपको याद रखना है, that is CAM, cycle of photosynthesis. उसकी photosynthesis की जो cycle है वो C4 में से मॉडिफाई हुई है, C4 में से मॉडिफाई होके बनी है और इसका नाम है CAM, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, CAM साइकिल. ये कैम साइकिल आप याद रखोगे, इतना इनफ है आपके लिए, पूरा नाम याद रखने की अभी आपकी रिक्वायरमेंट शायद नहीं है, राइट? तो उसका मॉडिफिकेशन है फोटोसिंथेसिस का, वो है CAM, कैम साइकिल, राइट? ओके. अब इसके एडेप्टेशन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा. डेजर्ट है, टेम्परेचर हाई है, तो वो तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मैटर है विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस. जितनी अवेलेबल सनलाइट ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा अच्छा हो सकता है. बट प्रॉब्लम इज दैट कि सनलाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तो वाटर लॉस भी बहुत ज्यादा है. वाटर लॉस ज्यादा है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि डेजर्ट है तो वाटर है ही नहीं. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द डेजर्ट प्लांट. तो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो उसके सामने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, राइट? अगर वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होती, सही फॉर एग्जांपल, तो वो डेजर्ट ही नहीं होता ना. सो वाटर है ही नहीं, तो लूज कैसे करेंगे हम? तो दे डू नॉट हैव वाटर टू लूज. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा डेजर्ट प्लांट का, कि वो दे कैन नॉट अफोर्ड द लूजिंग ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. इवेपोरेशन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पास वाटर है ही नहीं टू अब्सॉर्ब. तो ये अवॉइड करने के लिए दे हैव लॉस्ट लीव्स. उसने लीव्स को लॉस्ट कर दिया, लॉस्ट नहीं, मॉडिफाई कर दिया. क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, राइट? एंड दे हैव मॉडिफाइड देम इनटू, किसको पता है? किसी को नहीं पता है? यस, वलसाड सेंटर. Sir, thorns. यस, वेरी गुड. थॉर्न. उसमें से थॉर्न बन जाते हैं, पूरे का पूरा. एक थॉर्न मतलब एक लीव था पहले, लीव्स का ही मॉडिफिकेशन थॉर्न्स में हो चुका है उसमें. तो अब लीव्स का काम कौन करेगा? पॉइंट टू बी नोटेड. लीव्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये तीन काम लीव्स के हैं, तो वो कौन करेगा? तो लीव्स ने जाते जाते ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिए पता है? स्टेम को. उसका स्ट्रक्चर भी लीफ लाइक हो गया, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, राइट? अगर आप देखोगे उसका स्टेम,
तो उसका या तो सिलिंड्रिकल हो गया है या तो डोर्सी वेंट्रल फ्लैट हो गया है। ओके उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पूरी मैकेनिज्म इसने जाते जाते इसको दे दी कि ये बेटा मैं जा रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तू संभाल ले, फोटोसिंथेसिस कर लेना, राइट। ओके एक फंक्शन इसमें होता है, जब फोटोसिंथेसिस करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव्स के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। उसका नाम किसी को पता हो अगर? सर क्वेश्चन फिर से बोला। ओके फोटोसिंथेसिस जब करना है तब फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ देम रिक्वायरमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, उसको अब्जॉर्ब करके अंदर सिस्टम में पहुंचाना है। तो वो कौन करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सुरेंद्र नगर सेंटर। गुड, बस ये यहां पे लिखना था मुझे, स्टोमेटा। वो अगर मोनोकोट है तो डम्बल शेप के होंगे या तो बीन शेप्ड के होंगे, ये सब आता था पुरानी टेक्स्ट बुक में 9th या 10th में। मुझे परफेक्टली याद नहीं है कब आपको सिखाया गया है, बट इट वाज देयर समटाइम्स, राइट। 8th में स्टेप में मॉडिफाई हो गया है, लेंटिसेल्स बोलते हैं ना। हाँ, लेंटिसेल वो स्टेम के ऊपर होते हैं, यस। सो ये स्टेम मॉडिफिकेशन जो है, मैं अभी आपको इसके बारे में एक्चुअल में बात कर रहा हूं। फाइलोक्लेड जो लिखा था ना वो स्लाइड में, फाइलोक्लेड ये है मॉडिफाइड स्टेम, लीफ लाइक है, क्लोरोप्लास्ट बेरिंग है एंड स्टोमेटा बेरिंग है। तो वो प्लांट का काम करता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का काम करता है, मॉडिफाइड है। तो मैं आई एम गोइंग बैक अगेन हियर। वो जो मैंने आपको समझाया है वो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखा ही है, लेकिन उसका पर्पस मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा हुआ है, राइट। सो इट इज अ ग्रीन फ्लैटेड फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यूजुअली दे आर फाउंड इन सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन दैट इज desert region, I mean, right? Say for example Opuntia and Euphorbia. There are two examples. ये Opuntia है, ये तो आपने देखे ही होंगे प्लांट्स आजू बाजू में कहीं ना कहीं। और ये जो है यूफोरबिया है, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल है स्टेम और यहाँ पे फ्लैट है, इनफ्लैटेड है। तो ये सिर्फ फर्क है, बाकी मैकेनिज्म दोनों में सेम है। फ्लैशी है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, एंड दोनों के ऊपर लीव्स नहीं होते हैं, लीव्स मॉडिफाई हुए हैं थोन में, राइट। सो दैट इज अ स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन विच इज फाउंड इनटू द स्टेम ऑफ डेजर्ट या तो एरिड रीजन। मे आई हम सब ऑल राइट। अब बात हम जो सीखने वाले हैं दैट इज there are many stems which are utilized for vegetative propagations. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब हमें पता है कि जब कोई भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट
सॉरी नॉन फ्लावरिंग प्लांट नहीं, पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट जब रिप्रोडक्शन में एंगेज होता है, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। से फॉर एग्जांपल लीव्स, उसमें से अगर ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है, स्टेम उसमें से अगर ऑफस्प्रिंग डेवलप होती, या तो रूट उसमें से अगर आप नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम यूज होता है। ऐसी हमें 4 अलग अलग सिस्टम यहाँ पे दी गई है, 4, जिसमें से एक सिस्टम है स्टोलन। फर्स्ट, स्लेंडर, पतला सा लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। चलिए ये समझाता हूं मैं आपको। ये मेन एक्सिस है, राइट, और यहां से ऊपर की तरफ स्टेम है। तो स्टेम की मेन एक्सिस के बेस मतलब जो पार्ट जमीन के नजदीक है उसको बेस बोलता हूं मैं, बेस ऑफ द स्टेम। वहां से एक पतली सी स्लेंडर सी एक ब्रांच डेवलप होगी जो जाएगी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सॉइल। ऑफ कोर्स सॉइल की सरफेस से पैरेलल आगे जाएगी। ऐसे कोई एक पार्ट ऐसा आएगा जहां पे वो जमीन को टच कर लेगी, जहां पे जमीन को टच कर लेगी उस पार्ट में से रूट उगना चालू हो गए और वहां से एक नया प्लांट निकल जाएगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड स्टोलन। क्या बोलेंगे हम उसको? स्टोलन। कहां पे देखने को मिलेगी? मिंट एंड जस्मीन, ये 2 एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर। अंडरग्राउंड स्टेम, देखिए स्टेम है जो आपको यहां पे ऊपर की तरफ दिखाया गया है। अगर वही सेम टू सेम मैकेनिज्म अंदर हो तब क्या हो? तब उसको मैं बोलूंगा रनर। तो ये सरफेस के अंदर होगा बट होगा मैकेनिज्म सेम टू सेम। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट लाइक ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निशे, निशे मतलब नेक्स्ट प्लांट, एंड व्हेन अदर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। मींस उसका मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल इसी में समझा देता हूं मैं आपको। ये अंडरग्राउंड है ऐसा आपको समझ लेना है। तो ये नया प्लांट, ये प्लांट है, उसमें से ये नया ब्रांच बना, ये बना, ये बना, ये बना। अब यहां पे रूट उगना चालू हुआ, तो रूट में से वो नया प्लांट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये पुराना पार्ट डाई नहीं हो जाता है, ड्राई होके सूख नहीं जाता है। उसके बाद यहां पे नया प्लांट बन जाता है। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस, राइट। तो उसको मैं बोलूंगा रनर। ये भी रनर ही है, इसको भी रनर बोलूंगा, ये भी रनर ही है, बट ये स्टोलन है जो कि ऊपर की तरफ है सरफेस से, और ग्रास उसमें नीचे की तरफ है रनर। तो यहां पे सिर्फ रनर वर्ड मैंने यूज किया है, वहां पे स्टोलन ऐसा वर्ड मैंने यूज किया है, राइट। सो अंडरग्राउंड स्टेम होगा ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में। स्प्रेड टू न्यू निशेवन वो हो गया। अब बात आती है ऑफसेट की। ऑफसेट जब वर्ड आएगा तो आपको याद रख लेनी है वो एक्वेटिक प्लांट है। कैसा है? एक्वेटिक प्लांट। जो सिस्टम आपने अभी यहां पे पढ़ी पहले वाली, ये जमीन के सरफेस नहीं है, पानी की सरफेस है, दैट्स इट। बाकी मैकेनिज्म सेम, राइट। तो यहां पे लेटरल ब्रांचेस विथ शॉर्ट इंटरनोड्स and each node bearing rosette of leaves and tuft of root. अब पूरा ऊपर से है ना। सिंपल सा लॉजिक है जो आपको समझा देता हूं।
बहुत ही कॉमन लॉजिक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। से फॉर एग्जाम्पल कि ये सरफेस ऑफ वाटर है, अगर मुझे कोई भी प्लांट इसके ऊपर उगाना है, सही फॉर एग्जाम्पल, तो ये रूट बनाया मैंने, ये रूट बना, सही फॉर एग्जाम्पल, राइट। इसमें से मैंने ये स्टेम बनाया, तो 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट। आपको लगता है वाटर की सरफेस इसका वजन उठा पाए? कैन water surface be able to hold or bear the weight of plant? Not possible. सोइल की सरफेस हार्ड होती है, वाटर की सरफेस हार्ड नहीं होती है, तो इट कैन नॉट बेयर दी वाटर, तो ऐसे द वेट, तो ये नहीं हो सकता है इसमें। तो इसका जो स्टेम है वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो स्टेम उसका, से फॉर एग्जाम्पल रूट है, तो रूट का भी गुच्छा होगा, गुच्छा, टफ्ट ऑफ, है ना। देखिए ये क्या वर्ड यहां पे, टफ्ट ऑफ रूट ऐसा लिखा है, गुच्छा रूट का होता है पहला, राइट। ओके, अब यहां पे आता हूं मैं। तो हल्का सा उगता है ऐसे, इतना सा उगा, इत्तू सा उगा, कौन? स्टेम। और एक पूरा बड़ा सा लीव बना दिया नोड के ऊपर। फिर आगे से थोड़ा सा ग्रो हुआ, थोड़ा सा, थोड़ा क्रॉस में दूसरा लीव उगा दिया ऐसे। फिर थोड़ा सा ऊपर ग्रो हुआ, ऊपर थोड़ा सा ग्रू, ऐसे ग्रो कर दिया, ऐसा। रोज, रोज का जो फ्लावर होता है उसके पेटल्स कैसे होते हैं? बस छोटा सा बीच में स्टेम होता है और लीव्स उसके अराउंड होते हैं, तो उसको रोजेट पैटर्न बोलते हैं। रोज जैसा अरेंजमेंट, कैसा? रोज, ROSE, रोजेट वर्ड वहां से आया है, ये जो है ना, ये रोजेट पैटर्न है, ये रहा रोजेट। तो रोजेट वर्ड रोज के जैसी पैटर्न के लिए यूज होता है, बहुत ही कॉमन बॉटनिकल वर्ड है रोजेट पैटर्न, जो आपको याद रखना है। काफी सारी चीजों में ये यूज होता है रोजेट वर्ड, राइट। सो नोड्स के ऊपर ये लीव्स का अरेंजमेंट रोजेट पैटर्न में होता है। तो ये ऑफसेट जितने भी प्लांट है ना, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो यहाँ पे हाईलाइट की गई है, स्पेसिफिकली हाईलाइट की गई है। एग्जाम्पल, यहाँ पे दो टाइप के प्लांट्स को किया गया है, एक का नाम है पिस्टिया और दूसरे का नाम है आइकोर्निया। ये दोनों ही एक्वेटिक वीड कहे जाते हैं। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, जो यूजफुल नहीं है, यूजुअली ये हार्मफुल प्लांट्स है, राइट। अगर स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट वाटर मीन्स डैम हो या मे बी पॉन्ड हो, तो वहां पे वो ग्रो होना चालू हो जाते हैं, है ना। सो उसको बोलते हैं एक्वियस या तो वाटर वीड बोलते हैं हम। नाउ कम्स द sucker. It is the lateral branch, right, that originate from the basal underground portion of the main stem. Okay. ये स्टेम है, से फॉर एग्जाम्पल ये रूट है, राइट। तो ये बेस ऑफ रूट है, बेस ऑफ स्टेम है, सॉरी। यहां से लेटरल ब्रांच उगेगी, यहां से, बट उगेगी कहां पे पता है? अंडरग्राउंड उगेगी, ऐसे ऐसे जाएगी अंडरग्राउंड, और कहीं से भी ऐसे बाहर निकल जाएगी, और यहां पे एक नया प्लांट उग जाएगा। यही आगे बढ़ेगी, अगेन फिर से ये नया प्लांट उगाएगी कहीं पे, ऐसे कंटिन्यूअसली वन बाय वन प्लांट उगाती जाएगी।
बट ये जो ब्रांचिंग होगी ये बेस ऑफ स्टेम से होगी। ये एक यूनिक टाइप का मॉडिफिकेशन है, राइट? यस, अहमदाबाद सेंटर। सर कीचड़ तो सब दलदल में प्लांट्स उगते हैं, दलदल में प्लांट्स उगते हैं, दलदल हाँ, उगेंगे। का भी स्ट्रक्चर वाटर में जो प्लांट्स उगते हैं उनके जैसे ही होगा। आपका जो वॉइस प्रॉपरली में आई कुड नॉट बी एबल टू गेट इट, सो अनफॉर्चुनेटली उसको अंडरस्टैंड करना मेरे लिए मुश्किल है। तो इफ यू कैन क्लियरली मेंशन व्हाट यू आर सेइंग। जो मतलब आपने बोला कि दलदल में उगते हैं प्लांट्स, तो उनका स्ट्रक्चर भी पानी पे जो प्लांट उगते हैं उनके जैसा ही होगा। दलदल का जो प्लांट होता है वो मॉडिफाइड होता है एंड वो मैंग्रोव्स है जिसके बारे में हमने आगे रूट्स में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आई थिंक विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर ऑफ रूट, न्यूमेटोफोर इफ यू रिमेंबर, है ना? तो उसका स्ट्रक्चर यूनिक है, अलग है, क्योंकि उसका हैबिटेट जो है, हैबिटेट मतलब वो जहाँ पे रहते हैं वो जगह को हम हैबिटेट बोलेंगे। तो दलदल का जो एरिया होगा, सी शोर का एरिया होगा, बे, BAY, बे जहाँ पे होगी, तो वो सब प्लांट एक अलग ही टाइप के होते हैं। श्रब जैसा उसका बॉडी डिजाइन होता है, SHRUB, श्रब होते हैं वो बेसिकली, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जैसे होते हैं, एक्वियस प्लांट जैसे नहीं होते। तो दैट इज अ फार डिफरेंस इन एक्वेटिक प्लांट and plants which are found into these habitats, right? I hope I am very clear with all the doubts what you had. All right. Okay. कहाँ पे था? Yes. So basal underground portion of main stem, उसमें से ब्रांच उगती है, अंडरग्राउंड ही उगेगी। मैंने जो बोला वो ये मेन ब्रांच है। अब यहाँ से उग के ये एक प्लांट बना, दूसरा प्लांट बना, कंटिन्यूअसली ऐसे बनते रहते हैं। ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, कम्स आउट ओब्लिकली अपवर्ड, गिविंग राइज टू लीफी शूट। ये जब ग्रो करेंगे तब बेंड होगे, फिर से ऊपर ही आएंगे और बाद में लीफी पार्ट को उगाएंगे। सेम आगे बढ़ेंगे, ऊपर आएंगे, लीफी पार्ट को ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। चलिए, stem is over and let we begin with next discussion, that's about leaves. Sir, Yes sir. sir, Yes sir. sir, what is difference between sucker and runner? Sorry. What is difference between sucker and runner? Okay, difference between sucker and runner. Okay, रनर एंड सकर के ऑलमोस्ट डिफरेंस एक ही है। जो सकर होगा वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है, सॉइल की सरफेस के ऊपर। रनर जो है वो अंडरग्राउंड, उतना ही फर्क है, नथिंग मोर। Any other doubt? Any other doubt? All right. So shall I begin with leaf with your humble permission? लीफ थर्ड वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट बॉडी का, एंड दैट इज एसोसिएटेड स्पेसिफिकली विथ 3 बेसिक फंक्शंस एज आई सेड अर्लियर टुडेज डिस्कशन। लीफ का जो फंक्शन है मेनली प्राइमरीली वो है फोटोसिंथेसिस।
राइट, जिसके लिए प्लांट भी जाने जाते हैं, जिसके लिए लीव्स भी जाने जाते हैं, वो एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर उसको करना है तो उसको कंटिन्यूअसली चाहिए वाटर एंड मिनरल्स जो है जमीन के अंदर। जमीन के अंदर से उसको सक करना है, ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, तो उसको कंटिन्यूअसली उसको खींचना पड़ेगा, राइट। इट हैज टू पुल द वाटर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। तो ये पुलिंग फोर्स जनरेट करने के लिए, आई रिपीट, ये पुलिंग फोर्स जनरेट करने के लिए उसके पास एक स्पेशल एडेप्टेशन है, एंड वो एडेप्टेशन है, दैट्स उसका सेकंड फंक्शन, एंड दैट इज इवेपोरेशन। राइट, इवेपोरेशन इज कॉमन वर्ड विच इज नॉट टेक्निकली राइट। तो इसका जो इवेपोरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट जो इवेपोरेशन करता है? पोरबंदर। Transpiration. So it is transpiration, right? Third important function what plant is having, that is associated with its stomata. Earlier today we have discussed about, right? It is gaseous exchange. So these are the three primary function for what leaves are responsible. सभी leaves के ये तीन function common है. They are designed such a way that they can do photosynthesis, they can transpiration, and they can do gaseous exchange easily. So that's what the story of leaves what we are going to study now. Okay. Usual shape of the leaves, what we have the idea about, जिसके बारे में हमें already पता है, right? Lateral flat structure है and borne on stem, stem के ऊपर वो उगते हैं. Develops at node, node से निकलते हैं, उसका development होगा nodes में से. Bears buds into its axis or axile, right? Bud होते हैं उसके पास, right? On its axile. Okay. इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूं आपको नाउ. Say for example, ये कोई ब्रांच है, यहां पे ये बड है, राइट? ये बड है, दैट इज लेटरल बड. यहां से लीव्स को उगना है, ऐसे कर. तो जिस पार्ट में से उगना है वो पार्ट ये है लेटरल बड. जब उगेगा तो उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन यहां पे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा. तो ये होगा अभी लेटरल बड. लेटरल बड होगा, जो होगा ये ब्रांच है और ये लीव्स है, तो उसकी जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये लेटरल बड. तो एक्साइल मतलब ये खांचा, वो खांचे के अंदर होगा वो लेटरल बड, राइट? तो उसके बारे में ये आपको समझाया गया है. आई मीन तो ये बड होगा, वो एक्सिल के अंदर आपको मिलेगा वो. ओके. द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच. लेटर मतलब देखिए यहां पे आपको पहले क्या लिखा है, जब कोई भी स्टेम उगता है तो स्टेम के नोड में से निकलेगा लीव्स, बट वो ग्रीन स्टेम के लिए है, यंग स्टेम के लिए है. जब वो स्टेम मैच्योर्ड हो जाएगा तब जिस जगह से निकलनी है लीव्स,
लीव्स नहीं निकलेगी, वहां से ब्रांच निकलने वाली है लेटर ऑन, जब वो स्टेम थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाएगा, जब वो स्टेम ग्रीन में से वुडी हो जाएगा, तब एक्सिलरी बड में से क्या निकलने वाला है, ब्रांचेस निकलने वाली है लेटर ऑन। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम में से ही बनेंगे वो। आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर, मैंने आपको अभी समझाया था, सेम टू सेम मेथोडोलॉजी में अभी मैं आपको वंस मोर एड ऑन करता समझाता हूं। ये है सरफेस, ये है एपिकल बड, राइट, ये किया इसने ग्रोथ, तो एपिकल बड आगे चली गई, एपिकल बड ने ही थोड़ा सा यहां पे मेरिस्टेम रख दिया, उसी में से बना फर्स्ट लीव। तो लीव किस में से बना, एपिकल में से, राइट। अभी ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, तो ये एपिकल बड यहां पे रह गया, एक लीव यहां पे था ही पहला, ये आगे बढ़ा तो यहां पे दूसरा लीव उग गया, तो ये अभी दो लीव्स हो गए। तो लीव जो एड ऑन होता जाएगा वो किस डायरेक्शन में एड ऑन हो रहा है, ऊपर की तरफ, राइट। तो पेटल, पेटल मतलब लीव्स, आगे, आगे मतलब एक्रो, तो एक्रोपीटल फॉर्मेट में एक के ऊपर एक एड ऑन होते जाते हैं, ऊपर की तरफ एड होते हैं, उसको बोलेंगे, इस डायरेक्शन को बोलूंगा मैं एक्रोपीटल, राइट। क्या बोलूंगा मैं, एक्रोपीटल फॉर्मेट बोलते हैं उसको। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप बोल सकते हो, नया वर्ड है, पहली बार आया है, ऑल राइट, गुड। ये रहा, ये समझाया आपको एक्रोपीटल के पहले नीचे, उसके बाद नया उगेगा, उसके ऊपर उगेगा, इसके बाद जो नया उगेगा उसके भी ऊपर बनेगा, ऐसे एक्रोपीटल बोलते हैं उसको। तो एक्रोपीटल ऑर्डर है ये। दे आर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वाह, पहली बार सुना ऐसा, है ना, कि लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, कि पहले हम पता भी नहीं था शायद, अच्छा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना हम कैसे समझ पाते इनको। ऑल राइट, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लीव्स, बहुत ही कॉमन है हमारे लिए, राइट। तो ये अगर हम लीव्स को देखें यहाँ पे, तो ये ब्रांच जिससे लीव्स जुड़ा है उसका जो बेस पार्ट है, ये बेस, राइट, उसको बोलूंगे लीफ बेस। क्या बोलेंगे उसको, लीफ बेस। लीफ बेस में आगे जो ऊपर जाता है, राइट, इसको बोलेंगे अपना सेकंड पार्ट कॉल्ड पेटियोल, और उसके बाद ये स्प्रेड हुआ हुआ मस्तिका पार्ट होता है लीव्स का, फैला हुआ, राइट, उसको बोलेंगे लेमिना या तो लीफ ब्लेड। तो टोटल नंबर 1 बेस पार्ट, दूसरा पेटियोल एंड तीसरा लेमिना, ये 3 मेजर पार्ट है जिससे लीव्स बना हुआ है। फाइन, लीफ बेस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले 3 पार्ट में से। विथ दीज द लीफ इज अटैच टू द स्टेम, लीफ स्टेम के साथ अटैच किया हुआ जो स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड पार्ट है वो है लीफ बेस, जो जोड़ता है लीफ को, किससे जोड़ेगा, स्टेम से। मे बेयर, में हर एक में होना जरूरी नहीं है, सो मे बेयर 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। स्टिप्यूल, अब स्टिप्यूल क्या है, तो से फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है, ये लीव्स है, लीव्स जहां पे जुड़ा है
वहां पे छोटे छोटे दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं ऐसे। अगर ये है तो इसको बोलूंगा मैं स्टिप्यूल। क्या बोलेंगे हम? स्टिप्यूल। अगर स्टिप्यूल है तो उसको स्टिप्यूलेटेड लीव्स बोलेंगे, अगर स्टिप्यूल नहीं है तो उसको नॉन स्टिप्यूलेटेड लीव्स बोलते हैं। मोनोकोट, मोनोकोट का मतलब होगा ऐसे प्लांट जो यूजुअली मोनोकोट्स, याद है? भूल गए? ग्रेन प्रोड्यूसिंग, यूजुअली ग्रेन प्रोड्यूसिंग। कॉमन ये ट्रिक है याद रखने की। डाइकॉट, रेस्ट ऑफ देम, या तो से पल्स प्रोड्यूसिंग, जिसमें से पल्स या तो और अदर काफी, ये तो पल्स एंड हम अपने डेली रूटीन का जो खाना है, राइट, उसमें दो चीज मेन होती है। एक होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, अनाज जो बोलते हैं ना, अनाज, और दूसरा होता है कठोर। तो अनाज जो होता है ना, दैट इज मोनोकोट, प्रोड्यूस बाय मोनोकोट, एंड कठोर जो होता है वो विच इज प्रोड्यूस बाय डाइकोट। कोई भी कठोर आप ले लो, सही फॉर एग्जांपल मूंग है, अड़द है, तो उसका फाड़िया करोगे तो दो फाड़िया निकलते हैं ना। लेकिन कोई भी अनाज, सही फॉर एग्जांपल गेहूं, राइट, व्हीट, सही फॉर एग्जांपल बाजरी, राइट, तो उसके दाने के दो पार्ट नहीं होते, तो मोनोकोट है वो। तो जिसके सीड के दो पार्ट होते हैं वो डाइकोट है, जिसके सीड के वन पार्ट होते हैं वो मोनोकोट है। तो मोनोकोट का लीफ जो होता है, कोई भी मोनोकोट का एग्जांपल ले लो, सही फॉर एग्जांपल शुगर कैन, शेरडी का जूस पीने जाते हो तो आप देखते हो उसके लीव्स, तो उसका लीफ का लीफ बेस नहीं होता है, पेटियोल नहीं होता है, तो उसका लीफ बेस सीधे सीधा कहां से जुड़ा होगा? वो गाठा नहीं होता है उसका, आप बोलते हो ना गाठा, नोड, NODE। अभी आप नीट देने वाले हो, गाठा नहीं बोलते उसको, नोड बोलते हैं। नोड के साथ पूरा डायरेक्टली ज्वाइंट हुआ है, थरली पूरा ऐसे रेप अराउंड हो चुका है, रेप अराउंड, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जुड़ा है, पूरा रेप हुआ है अराउंड दी एक्सिस, अराउंड दी एक्सिस रेप हुआ है ऐसे, राइट? आप समझ रहे हो मेरी बात को? सो यहां पे दिखाया गया है, देखिए रहा, ये लीफ बेस है उसका, बट ये रेप अराउंड है पूरा, ऐसे पूरा ऐसे फरते हैं ऐसा। तो दैट इज व्हाट अ स्पेसिफिक, उसको बोलते हैं शीथ, पूरा शीथ बन चुका है वो, है ना, पूरी शीथ बन जाएगा। तो ये एक स्पेशलिटी है मोनोकोट के लीफ बेस की, डू रिमेंबर दिस। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूम दैट इज कठोर, डाइकोट, लेग्यूम दैट इज कठोर, लेग्यूम जहां पे आपको देखने को मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट या तो लेग्यूम, तो वो कठोर या डाइकोट है। लीफ बेस बिकम स्वोलन, जाड़ा बन जाएगा, बहुत ही थिक बन जाता है, स्वोलन बन जाता है, उसको बोलते हैं पल्वीनस। क्या बोलते हैं उसको? पल्वीनस। यहां पे शायद ये रहा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जाड़ा हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम पल्वीनस। तो मोनोकोट पे कहीं पे आपको शीथ मिलेगी एंड डाइकोट में आपको मिलेगा पल्वीनस मॉडिफिकेशन, राइट, लीफ बेस का मॉडिफिकेशन। सो 4 बज चुके हैं एंड वी आर एंडिंग द सेशन हियर. Now onwards we will be continuing after 2 days, and till then you take rest, have a nice day and enjoy your study. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो.